So, Bismillahirrahmanirrahim. This is your class of Principles of Accounting, first year, multiple choice questions on your screen. Wages outstanding given in the trial balance will be treated as your liability. So, your correct option is liability. Prepaid interest given in the trial balance will be treated as asset because of prepaid. Which of the following statement is true about your sales return? Sales return reduces the gross sales of the firm. Sales return affect the net income of this firm. Sales return affect the flow of cash. Sales return affect or reduce the gross sales of the firm. Option A is correct. Then you have to find out the missing values. For the missing values, what you have to do, you have to find out the value for the liability. You have to find out the value for the capital. Sorry, आपने capital की equation derive formula लगाना है. Capital is equal to asset minus liability. ठीक है, assets है A0385, then minus the liability is 20,000. What will be your answer? 60385. ठीक है, this will be your correct answer. Option A. Then we have cost of sales is 60,000 and the sales is 95,000, operating expenses 20,000 during the year. What will be the value of gross profit? आपने gross profit की value find out करनी है. Sales minus cost of sales. Sales minus cost of sales means आपने sales में से cost of goods sold minus करना है. Your answer will be 35,000. Option B. ठीक है बेटे. Now I proceed. Identify which of the following would not be shown in the format of a cash book. This is your check number. ठीक है. Option A. Which would not be shown is your option A. Check number हमारे पास cash book में नहीं required होता because check book is comprises of only cash transactions. तो इसमें हमारे पास check number का कोई concept नहीं है. ठीक है बेटे. Then we have which one of the following is a type of general ledger. हमारे पास उन्होंने पूछा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि general ledger की type है. Your correct answer is T account. Clear? Then you have option 8. A financial statement indicates the success or failure of a business over a period of time is called dash. ऐसी financial statement जो कि indicate करे success या failure किसी भी business के. Your options are cash flow, retained earning, income statement, balance sheet. Your correct option is D, balance sheet. Number 9. Which of the following would be suitable had for short-term advance? Short-term loans from a customer and a balance sheet. इसको हम क्या कहते हैं? जब भी हम short-term की बात करें, it means it is your current liability. Inventory is always considered as. यहाँ पे inventory का जो synonym है वो मैं आपको बताती हूँ. Inventory का synonym है बेटा stock, और stock हमेशा हमारा current asset consider होता है. ठीक है. Then we have MCQs number 11. A company received discount on its credit purchase. उसने उधार पे सामान खरीदा और उस टाइम पे उसने डिस्काउंट अवेल किया और वो डिस्काउंट डेफिनेटली डिस्काउंट रिसीव्ड है. Your option B is the correct answer. Then MCQs number 12 we have on the screen. Which of the following is the process of transferring journal entry information into a ledger account? ठीक है. That will be called journalizing. ठीक है. और वही transferring no sorry, this will not be journalizing, this will be a posting. You are posting into a T account. Sorry, it will be a posting of from journal entry to the ledger. This will be a posting of transactions. Then we have number 13. Which of the following account will be debit when the owner of a business sold machinery
10,000 ऑन कैश. उन्होंने आपसे पूछा है कि डेबिट क्या होगा. योर करेक्ट ऑप्शन इज डी. देन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड. यहाँ मैंने आपको चेंज कराया था कि आप क्रेडिट के हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड इफ द ओनर्स of the business sold machinery on cash. Your correct option is sales account. Okay, I proceed. Insurance paid in advance would be treated as it means something paid in advance. इसकी nature आपके पास क्या होगी? It will be treated as your prepaid current asset. ठीक है? Then we have which of the following will be added and purchased in order to get the value. ठीक है, हमें जब वैल्यू मालूम करनी है तो उसमें से कौन सा ऐसा अकाउंट है जो हम ऐड करते हैं. दैट विल बी योर कैरेज इनवर्ड विल बी एडेड. ठीक है, कैरेज इनवर्ड विल बी द करेक्ट आंसर. वेट, लेट मी हाईलाइट दिस. Then we have MCQs number 17 on the screen. If the cost of sales is 60,000, sales is 95,000, operating expense is 20,000. हमारे पास gross profit का आंसर आया था 35,000. ठीक है, then 35,000 minus 20,000 gross profit. I think आप लोग का क्या आया था 95,000 minus 60,000. You will get the value of 35,000. And then less operating expenses is 20,000. Your option will be 15,000 for the net profit. Correct? ठीक है. Then we have find out the missing values. Missing values को find out करने के लिए हमारे पास क्या strategy थी कि हमने सारे जितने भी assets account थे, ठीक है, assets की जितनी भी values थी उनको हमने add किया था. तो उसमें से आपको minus करना था बेटे अपनी कैपिटल की वैल्यू को to get your answer. So your total of your assets is on your screen is 111 minus 1000 क्योंकि लाइबिलिटी की इक्वेशन हमने यहाँ पे अप्लाई करी है. लाइबिलिटी इक्वेशन इज इक्वल्स टू एसेट माइनस कैपिटल. ठीक है, सो जब टोटल ऑफ योर एसेट्स इज 111 minus 1000, then you will get the answer is 110,000. 1,10,000. Let's see कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, I proceed towards your MCQs number 19, which is normally this is a debit balance. Loan to Ali. अली को पैसे दिए हैं, is your debit balance. Loan from Ali. तो अली से अगर आपने लोन लिया है तो डेफिनेटली ये तो आपकी लाइबिलिटी हो गई है. बैंक ओवरड्राफ्ट इज द नेगेटिव बैलेंस ऑफ द बैंक. डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता है. परचेज डिस्काउंट हमेशा आपके पास क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, चाहिए, और सेल्स डिस्काउंट आपके पास डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है. सो योर लोन टू अली विल बी योर डेबिट बैलेंस बिकॉज लोन टू अली का मतलब आप अली को लोन दे रहे हैं. दिस विल बी योर डेबिट बैलेंस. वेट फॉर नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट. मैंने आप लोगों के साथ एक इक्वेशन डिस्कस करी थी. कैपिटल स्टार्ट प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इज इक्वल्स टू कैपिटल एट एंड. ठीक है, ये मैंने आपके साथ इक्वेशन डिस्कस करी थी ना बेटे. नाउ टू फाइंड आउट दिस इक्वेशन हमने इस कैपिटल स्टार्ट में प्लस नेट प्रॉफिट लिखा है. ठीक है, मैं इक्वेशन अगर आप लोग के साथ स्क्रीन पे लिख भी दूँ तो दैट विल बी मोर गुड फॉर यू पीपल. कैपिटल at start, ठीक है, then add net profit, ठीक है, less drawings, and then at the end we will get the answer of capital at end. ठीक है, सही है. तो हमने इस वक्त ये देखना है कि आपके पास कैपिटल स्टार्ट के अंदर, यहाँ पे देखिए मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ फोकस कराने के लिए आप लोगों को. कैपिटल स्टार्ट प्लस नेट प्रॉफिट, तो आपके पास कौन से अकाउंट के अंदर या कौन सी इक्वेशन के अंदर आपके पास नेट प्रॉफिट ऐड हो रहा है. बिकॉज उन्होंने कहा कि जो आप लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं
बेसिकली अगर आप लोगों को याद आए तो नेट प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज योर नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कौन सी स्टेटमेंट में करते हैं, ये भी आपके पास एक एमसीक्यू आ सकता है। द नेट प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड इन द स्टेटमेंट इज योर इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में आप लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और वो कैलकुलेट हुआ हुआ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो कौन सी स्टेटमेंट में होता है, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है। जो आप लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो किस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है, ये ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट में या फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। यहाँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट का एक स्पेसिफिक पार्ट जो कि इक्विटी सेक्शन है, सिर्फ वो आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है। और वो इक्विटी सेक्शन में क्या हम लिखते हैं, इक्विटी में लिखते हैं कैपिटल स्टार्ट एड नेट प्रॉफिट। इसका मतलब नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कौन सी अकाउंट में हो रहा है, कैपिटल के अकाउंट में या फिर इक्विटी के अकाउंट में। यहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, ठीक है बेटे। दिस इज ऑल द सोल्यूशन ऑफ द MCQs which I have discussed with you as per your model paper and again I am asking you कि आपने जितनी भी चैप्टर्स गो थ्रू करें जिसकी आपने प्रैक्टिस करी है उसकी बेसिकली आप थ्योरी को अंडरस्टैंड करें। अगर आपको थ्योरीज आती हैं, नेचर ऑफ अकाउंट्स आते हैं, रूल और डेबिट क्रेडिट बेटे आते हैं, सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर टॉपिक। अभी मैंने आपके सामने सारे MCQ सॉल्व करे हैं तो इट विल बी बिकम मोर ईजियर। बहुत आसानी हो गई ना हमें सॉल्व करने में, जस्ट बिकॉज कि हमने उसकी ट्रिकी टर्म्स को हाईलाइट किया है। थैंक यू सो मच।